जय हिंद, जय भारती, जय सुभारत। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। नई राह नई उमंगों के साथ मेरा कारवां बढ़ रहा है, चल रहा है मंजिल की तलाश में। मंजिल शिक्षा की, शिक्षा के भाव के साथ सेवा की, सेवा के रूप में संस्कार की, और राष्ट्रीय भाव, एक ऐसा राष्ट्रीय भाव जो मुझ में एक अलख जगाए, राष्ट्रीय भाव जो मुझ में उजाला करे ज्ञान का, एक ऐसा राष्ट्रीय भाव जो मुझ में उजाला करे प्रज्ञान का। और आज इसी क्रम में हम सभी यहां मौजूद हैं। मैं आशुतोष शर्मा, मैं भाविनी कौशल्य, सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सत्र 2018 के छात्र, आप सभी का मंच के इस छोर से ठोर वंदन, अभिनंदन, सुस्वागतम करते हैं। flowing from the four corners of heaven with the vibes of liberty and freedom, with a strong determination to bring about the change. We stand here to celebrate the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose in the struggle of India's independence. Every year, Subharti family has been celebrating this auspicious and pious day as Subharti Divas. And for the very first time in history, today we are going to celebrate it as Parakram Divas at national level. Please give a big round of applause. To quote Netaji, one individual may die for an idea, but after his death, this idea will incarnate itself into 1,000 lives. That is how the wheel of evolution moves on, and the ideas and dreams of one nation are bequeathed to the next. जी बिल्कुल, राष्ट्र संकल्पित है, गौरवान्वित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र गौरव को पा। साथियों, आज का यह दिन एक सामान्य दिन नहीं है। यह दिन है इस गौरवशाली राष्ट्र के गौरव व्यक्तित्व को याद करने का, उस गौरवशाली व्यक्तित्व के नेतृत्व में चलने का। I welcome the honorable founders of Swami Vivekanand Subharti University in their absentia, Dr. Mukti Bhatnagar ma'am and Dr. Atul Krishna sir, who is the living spirit of Netaji and a torch bearer for all of us. We welcome you ma'am, we welcome you sir. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे संस्थापक महोदय का, क्योंकि यही वे व्यक्ति हैं जो हमें आज के इस गौरवशाली कार्यक्रम से जुड़ने का सुनहरा मौका प्रदान कर रहे हैं। I request Honorable Vice Chancellor Sir to please give a plant as a token of our welcome to Mr. Alok Bhatnagar ji. Lamp lighting is supposed to bring in a lot of positivity in the entire atmosphere. And for the same, I request our Honorable Chief Guest Ma'am, our Honorable Vice Chancellor Sir, our Honorable Key Speaker of the Day, our Honorable CEO Ma'am, and our Honorable Pro VC Sir to please come upon the stage and light the lamp. Hallelujah.
हम सभी को पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए ललित कला संकाय के विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। By invoking Goddess Saraswati, we ask for knowledge and wisdom. Similarly, by invoking Lord Buddha, we ask for inner peace, spiritual well-being, and guidance towards enlightenment, the real truth of life. For this, I would like to invite Venerable Chandrakirti ji from Samrat Ashok Subharti School of Buddhist Studies for Buddha Mangala Charan. मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजयचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यान् बुद्धो भगवति सवाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको यहि पासिको वपनायिको। सुभारती के संस्कार झलकते हैं सुभारती गान में। ललित कला संकाय के छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में ये गान प्रस्तुत किया। Moving forward, I would like to request Dr. Neeraj Karan Singh Sir, Dean and Principal, Faculty of Journalism and Mass Communication, Swami Vivekanand Subharti University, to give welcome address.
Honorable Sir is a great influencer, a brainwave of the university, and a true mentor. He is the coordinator for today's program. Please give him a big hand. Over to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्पित राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र, आज का ये दिन राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस समारोह को आज मनाने जा रहा है। पंक्तियां कुछ कहती हैं, उसके बाद मैं स्वागत की क्रम में बढ़ूंगा कि देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी, एक नई किरण ले आ संदेशा, अग्निबाण सी छूटी थी, एक नई हवा ले आया राग, कुछ गुनगुन करती आती थी, आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती थी, एक नई कली चटकी इस दिन रौनक उपवन में आई थी, एक नया जोश, एक नई ताजगी हर चेहरे पर छाई थी। नेताजी का जन्मदिन था, नेताजी का जन्मदिन है। 125वां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, और 2022 का जरा स्वप्न देखिए, जब जन्म जयंती मनाई जा रही होगी। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब से विश्वविद्यालय संस्थापित हुआ है साथियों, उस दिन से आज का दिन सुभारती दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के आगाज के साथ में हर्षोल्लास के साथ में मनाता जा रहा। आज वो दिन पुनः हमारे समक्ष है, जिसे स्वयं भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का संकल्प लिया। मेरठ की क्रांति धरा, जहां 1857 के क्रांति के लिए प्रख्यात है, वहीं साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का यह दिन जिस तौर पर मनाया जा रहा है, जिस पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, उसका सूत्रपात सुभारती विश्वविद्यालय से हुआ है। मैं ये आपको गौरव के साथ में बोल सकता हूं। इस बात पर जरूर हम सब के लिए तालियां बजनी चाहिए कि आज का यह दिन सुभारती विश्वविद्यालय के, ये तालियां कम हैं क्योंकि ये कुछ सामान्य दिन नहीं है। 2008 से जब से विश्वविद्यालय बना, उसके बाद हर वर्ष इस दिन को सुभारती दिवस के रूप में मनाने का संकल्प हमारे संस्थापकों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे विभिन्न कुलपतियों ने, और आज जिस गौरवशाली दिन को, बाहर के कार्यक्रम को भी आपने देखा जब ध्वजारोहण हुआ, और आज पूरे दिन जो कार्यक्रम होंगे उसका नेतृत्व खुद स्वयं कुलपति महोदय कर रहे हैं। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल कहानी है, हमने तो उसकी नई गाथा आजाद फौज से जानी है। नेताजी की शख्सियत से हमें और बेहतर रूबरू कराने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर देशराज सिंह जी को। इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा महोदय का। नेताजी पर किए गए तमाम अध्ययन का एक अहम हिस्सा आज डॉक्टर साहब हमारे साथ बांटने जा रहे हैं। आपकी तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर देशराज सिंह जी का। सर्वप्रथम इस विश्व पुरुष की ओर से संपूर्ण राष्ट्र के लिए दिए गए अभिवादन के साथ सभागार में उपस्थित सभी के लिए मेरी ओर से जय हिंद। इस राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की कुलाधिपति स्मृति नारायण कक्कड़ जी, कुलपति श्रद्धेय ब्रिगेडियर वीपी सिंह जी, कार्यकारी अधिकारी बहन शल्या जी, आलोक जी और नेताजी के समय जापान के सम्राट के नाम पर यहाँ बौद्ध धर्म के एक तरह से कहने चाहिए पुनर्जीवित करने वाले पुनरुद्धारक हिरोहितो जी, डॉक्टर हिरोहितो जी, सभागार में उपस्थित इस विद्यालय की विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्यगण, समस्त अध्यापकगण, प्रोफेसर्स, डीन आदि और सभागार में उपस्थित विशिष्ट श्रोता, बच्चों, बहनों और भाइयों, मुझे जो ये सम्मान प्रदान किया गया है कि भारत सरकार द्वारा उद्घोषित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभावसर पर उनके द्वारा इस दिवस को पराक्रम दिवस नाम देकर इसे स्थायित्व प्रदान किया जाए। जब तक सूरज चांद सितारे रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाई जाती रहे। और इसी के साथ आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको आज के रंगारंग कार्यक्रमों की श्रृंखला की ओर। I thank students from Fine Arts College for their beautiful performance. Now it's time to learn
learn more. On this auspicious day, I request our CEO ma'am, Dr. Shalya Raj, to kindly come up on the stage and address us all with her insightful words. Everyone, please welcome her. Jai Hind, respected Chancellor ma'am, Vice Chancellor sir, Pro VC sir, Deshraj ji, all invited guests, Alok Bhatnagar ji, media, deans, principals, and my dear students. Before I say anything, there may be a repetition of what last time. पर उन चीज़ों को मैं सिर्फ आज इसलिए दोहराऊंगी बिकॉज जब मैंने पिछली बार ये चीज़ें कही थी तो हमारे प्यारे बच्चे तब नहीं थे. आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड द थिंग्स विच आई सेड विच वाज स्पेशली मेंट फॉर यू. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिकग्नाइज करने में हमें इतने साल लग गए एंड फाइनली वी रीच्ड अ स्टेज वेयर वी स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग हिज वर्क, the effort he put for our country to get freedom, the things he sacrificed and did for the country to get to where we are today. आज हम बहुत आराम से अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के इस बात पे चर्चा करते हैं और लड़ते हैं कि क्या हमें नेशनल एंथम पे खड़े होना चाहिए कि नहीं. एंड जिस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी होती है उस दिन बहुत गर्व के साथ आते हैं, ऐसे बैठते हैं और मनाते हैं. जब झंडा फहराया जाता है तो खड़े हो जाते हैं. एंड वी फॉरगेट द सैक्रिफाइसेस विच हैव बीन डन बाय फ्रीडम फाइटर्स विच दे आर स्टिल डूइंग. हम भूल जाते हैं उस स्वतंत्रता सेनानी को जो आज भी है, जो आज भी बॉर्डर पे खड़ा होके अपनी जान गंवा रहा है. वो नहीं याद रखता कि वो उसके घर परिवार का क्या हो रहा है उसके पीछे. वो उसके लिए कोई होली दिवाली नहीं होती, वो थिएटर भी नहीं होता जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सीज होती हैं. सो ऑन दिस डे मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, मैं नेताजी के सैक्रिफाइस के बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग हैं. देशराज जी ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें समझाया है कि उन्होंने क्या क्या किया था, वो क्यों नेताजी हैं, क्यों हम उनके सैक्रिफाइसेस को मना रहे हैं. आई विल जस्ट स्पीक अबाउट व्हाट वी शुड बी डूइंग, व्हाट वी आर नॉट डूइंग, व्हाट are our duties which we have been forgetting, and especially because मेरी पोस्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की. सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमें क्या करना चाहिए और मैं अपने बच्चों से सिर्फ वही बात करूंगी. वी फाइट ओवर रिलीजन, वी फाइट ओवर नेशनल एंथम पे खड़े होना चाहिए. वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. क्या जब बॉर्डर पे वो आदमी मर रहा होता है, एक सेनानी, एक सेना का आदमी मर रहा होता है, तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं एक हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम को कि सिख को. सो दिस इज द मैसेज आई गिव टुडे. नेताजी सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई किए, बट ही लेफ्ट एवरीथिंग. ही फॉट अगेंस्ट हिज ओन फैमिली who was working with the Britishers. His father was working with the Britishers, but he fought against his own family because उनको अपनी मातृभूमि को, अपनी माता को, अपनी देश को आज़ाद करना था और हम आपस में ही लड़ते रह जाते हैं. So we should take a lesson from him, from his sacrifices, and think of what we are doing for the country. मैम ने सही कहा, भारतीय बने. भारत है हमारा देश तो हमें भारतीय बनना है. I present my heartfelt gratitude for your words, ma'am. Moving forward, in the words of Mr. Narendranath Modi, yoga lets people discover the sense of oneness with yourself, the nature and the world. योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है. एक शक्तिशाली राष्ट्र को बनाने के लिए शक्तिशाली नागरिकों की आवश्यकता होती है. तो आइए खुद को पुनः एक बार खुद से जोड़ें और अपने आप में एकता और एकता का दृष्टिकोण का निर्माण करें.
Let's welcome students from Maharshi Aurobindo Subharti College of Naturopathy and Yogic Sciences for yoga presentation. Everyone, please give them a big hand. ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना जिव्यालय नासिका कर्णद्वार ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना जिव्यालय नासिका कर्णद्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। इस मधुर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। When angels have fallen down and evil has his day, you will find the gates of heaven guarded by a single beret. With these words, I welcome Brigadier Professor Dr. V.P. Singh Sir, the Vice Chancellor of Swami Vivekanand Subharti University, to come on the stage and acquaint us with his words. Everyone, please welcome him onto the stage. I'm very happy to see you, the students, back. If not full strength, at least maybe 20-30% of you. And we were missing you, let me tell you. We are very happy to welcome you back in the university. Today, as you know that what we are celebrating. Before I go further, I would like to give my greetings to Chancellor Madam. She has started early in the morning from Delhi and could be with us today. And then we are missing actually our founder and the chairman of Subharti Group of Institutions, Dr. Atul Krishna. And so the Dr. Mukti Bhatnagar, founder, president. Our dynamic leader, Dr. Shalya Raj, Chief Executive Officer, Head of the institutions, faculty, dear students, and of course the media friends. It looks so good to talk when something related to the country we talk about. Because today is the occasion. We are here to celebrate. Rather, I would say that it is the landscape celebrations which we are having because we are celebrating 21st October, then 30th December, and now the birth anniversary. And as you know that today is the national festival, in fact, because the central government has already declared this Prakam Divas, so it is official. As such, we were organizing all this, but it happens that the declaration from the central government also came. So it is a sort of gives a boost to our feelings that how we should celebrate such occasions. Now again, I will not talk much about the history because I am sure that our students have been enlightened time and again by our chairman, Dr. Atul Krishna, on many occasions in the past. You know the history of
doctor of people in this particular field, but in particular Netaji Subhash Chandra Bose. I'm sure that you will agree with me that there are certain personalities like Netaji Subhash Chandra Bose and Swami Vivekananda. Now, Netaji Subhash Chandra Bose, rather than talking of the history, I would like to put in different way that why we want to remember him, why he is now getting into our psyche. The simple reason, what qualities he had, it is unparalleled. Self-service, selfless service. He, I think, was the only ICS who sacrificed his professional career and jumped into the freedom struggle. An unparalleled contribution to the nation. And throughout, he had full of struggles. In fact, he used to say himself that life is half of its interest if you do not get struggle in life. No pains, no gains. Man, material and money by itself cannot give you the victory and freedom. It is the motive power which inspires you to do brave deeds and heroic exploits. And here his leadership was so great that if we all know that when he delivered his talk in the Rangoon, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, ये एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं था. It was what he was trying to say, that wars are not won just by mere discussions. No history is changed without giving some sacrifices. And he could inspire his men so much that they were willing to give their lives for the cause of the nation. So here, what actually he was trying to convey across. Now, you know that he has ideological differences with Bapuji. And you know the history that he told him that, yes, I will go my own way to achieve what I want to achieve. And if you really analyze, and I was, I think I had some conversation with somebody, that their personality like Swami Vivekananda, then Netaji Subhash Chandra Bose, and then Bapuji. The one of the doctrine of Bapuji was non-violence. Now, Netaji said that unless you shed some blood, it is not possible to get freedom. And to the extent, the discussion came that we worship Rama. Didn't do violence? He has to resort to violence, but over the evil. So wherever it is required, violence will be required. You cannot achieve every time everything just made mere discussions. And look at the vision of Netaji Subhash Chandra Bose. Today, even today, we are struggling to get the women empowerment in the Indian Army. Still, the women, they are not fighting at the front. Though to a large extent, something has been relaxed quite a lot. But here was the Netaji Subhash Chandra Bose who raised the Lakshmi regiment independently. Look at it that time, just that is before freedom. So what vision he had, and how he could inspire the women. So he had all these things in mind. So what we want to say that whatever qualities he had, if you look at his life history, the whole thing, how he was groomed and how he developed these anti-British sentiments, because that discrimination was there in the schools and the colleges, and he started things from there. In fact, his father sent him to the London to do the ICS because he thought that he will not make anything of himself. Because as Dr. Shailaja said that his father was, I would not say the pro-British, but he was a neutral man. So with these things, now it is apparent there is a lot to learn from his history.
पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम। पाचा बस नाम तेरा माँ हो, एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तेरे कुर्बान मेरी माँ। सबके गुरुजी प्रोफेसर देशराजन जी, वीसी साहब, आलोक जी, सीओ सुभारती, डॉक्टर शल्या राज, faculty and students. We have spent a delightful 2 hours celebrating the 125th anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary, and as always, I am amazed at the talent in Subharti, its students and its faculty. और जो दो हमारे कंपेयर्स हैं, I am amazed at their proficiency because they've kept the entire program very cohesive, very entertaining. There has never been a dull moment, and with the same enthusiasm and verb that I asked Dr. Shalya Raji, professionals हैं कि ये तो she said हमारे students हैं. So congratulations to all of you. Really amazing, and keep up the good work. Subharti has the capacity to one of the leading universities of India, if not the world. But uske liye we all have to have that jazba, that we need to believe in it. Jaise Netaji believed himself. He died, I won't say, because we are still not very sure what happened to him. There are many theories, many conspiracy theories, but we know that he disappeared from public life on 18th August 1945 when he was just 48 years old. Now 48 years is not a very huge time for anybody to achieve as much as he did. But his was a life, जो हम कहते हैं ना, well lived. उन्होंने अपने हर क्षण, हर घंटे को में इतना अचीव किया जो कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता. His life was very truly action packed. हर समय कुछ ना कुछ वो सोचते थे और कुछ करते थे. और इसी कारण से कि उन्होंने इस पीरियड में इतने कम समय में, सूक्ष्म समय आई वुड से, में इतने अचीवमेंट्स किए. हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, और जब एक स्ट्रगल का पीरियड होता है तो बहुत सारी विभूतियाँ सामने आती हैं. लेकिन यदि नेताजी ने आईएनए को नहीं स्थापित किया तो हमारा हो सकता है इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को वो डायनेमिज्म नहीं मिलता, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को वो पुश नहीं मिलता. जब अंग्रेज़ों ने ये देखा होगा कि हिंदुस्तानी अपना खून भी बहाने को तैयार हैं, तो उन्होंने ये सोच मन बना लिया होगा कि भाई अब हमारी खैर नहीं है, अब हिंदुस्तान को छोड़ के जाना ही है. बहुत सारे स्लोगन्स उन्होंने उस पीरियड में
बहुत सारे स्लोगन्स नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने सामने दिए। एक जो बहुत फेमस है उनका, वो है मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा अपने आने वालों को, और वो बिकेम अ नेशनल स्लोगन ऑल्सो फॉर एवरीबडी, दिल्ली चलो। दिस वॉज समथिंग ऑल्सो विच वॉज गिवन बाय हिम। आईने आमी ने इनकलाब जिंदाबाद को भी पॉपुलराइज किया था, और वो आज तक हम लोग के बीच में, हम लोग के जहन में है। जब भी कोई स्ट्रगल होता है तो उसको इनकलाब जिंदाबाद के नारे से ही उसमें जोश डाला जाता है। और इन थॉट्स की वजह से इतने सारे लोग आज़ादी के मूवमेंट में आए, क्योंकि जब वो देखते हैं कि एक नेता जो है वो इतना कर रहा है, अपना खून बहाने को तैयार है, इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख करके लोग उससे जुड़ते हैं। और यही मैं आप लोगों से, सब बच्चों से कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आपके सामने है, एक लीडरशिप रोल आप निभाइए। चाहे जो भी आपको रोल, जो भी आपका जॉब रहे, जो भी आपका क्षेत्र है इन फ्यूचर, उसको आप लोग, चाहे आप एक, जिसको कहें कि इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आई वुडंट से इवन इफ योर्स, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस काम के लिए भी औरतों को पैसा मिलना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड ऑफ देम। लेकिन जो भी माने बहुत ही एक सीमित, एक घर का एक घेरा हो, तो उसमें भी एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक आदमी की ज़रूरत होती है, एक औरत की ज़रूरत होती है जो जिम्मेदारी ले अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने माता पिता के। तो एक लीडरशिप रोल हमें अपनाना है, क्योंकि उन्होंने ये लीडरशिप हम लोगों को दी, और उनका ये विश्वास था कि केवल सैक्रिफाइस, जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जब तक हम उत्पीड़न को सहेंगे नहीं, तब तक हम अपनी आज़ादी नहीं हासिल करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब समय है सुभारती के संस्कृति विभाग की मासिक पत्रिका का पहला अंक आज लोकार्पण होने जा रहा है। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वीसी सर को, हमारी सीईओ मैम को, हमारे की स्पीकर सर को और हमारे प्रो वीसी सर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का। यह पत्रिका समर्पित है नेताजी को, उनके सिद्धांतों को, और आज उनके जन्मदिन पर ये विशेषांक है उनको। इस पत्रिका का नाम है चरित्रशाला। इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं डॉक्टर शल्याराज जी, और मैनेजिंग एडिटर हैं मिस्टर विवेक संस्कृति जी। मैं निवेदन करती हूं कि अगर मिस्टर विवेक संस्कृति जी हमारे बीच हैं तो कृपया कर मंच पर आएं। I cannot thank everyone adequately for their contribution and the willingness they have expressed to be a part of these festivities and maintaining the protocol even during these unprecedented testing times.
We are extremely grateful to our Honorable Chancellor Ma'am, who has traveled all the way from Delhi in this chilly morning. Ma'am has always attached her paramount importance to programs of such kind of the historic importance, and she has been always forthcoming whenever we organize such a program. Thank you, ma'am, for coming all the way and accepting and gracing the occasion. इस मंच के छोर से दूसरा सत्र राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का होगा, जिसमें डॉक्टर हरिओम पवार जी संयोजन करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे बीच में होंगे। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी आ चुके हैं। श्रीमान मानवीर मधुर जी हमारे बीच में होंगे। श्रीमान राम भदावर सिंह जी हमारे बीच में होंगे। दूसरा सत्र और जोरदार होगा। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन यहाँ पर प्रस्तुत होगा। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी का, बहुत जल्दी उस कार्यक्रम में हम प्रतिभाग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभारती सुभारती सुभारती